हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा फूड एंड हेल्थ। इंट्रोडक्शन। व्हाई डू वी नीड फूड? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। व्हाई डू वी नीड फूड? बच्चों, क्या आपने सोचा है कि हमें खाने की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी को? फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. Our body uses energy every day for difficult activities like walking, running, working, and sleeping. Our body needs energy for breathing and for keeping our heart and lungs working while we are asleep. Food contains essential nutrients which help to keep our bones, hairs, nails, teeth, and skin strong and healthy. बच्चों, जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग और स्लीपिंग। हमारी जो बॉडी है उसे ब्रीथ करने के लिए, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रॉपर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा हार्ट और लंग जो है तब भी काम कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। इसीलिए उसके साथ साथ जो भी हमारे बोन्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स, टीथ या स्किन है, उसे स्ट्रॉन्ग, हेल्दी पहुंचाने के लिए उसमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। इसीलिए फूड का जो है हमारी बॉडी में एक अहम रोल है। फूड मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. इट हेल्प्स अस रिकवर क्विकली व्हेन वी आर इल. इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी. Food helps our body and mind grow. Without food, any living thing will die. Delicious food also makes one happy and gives pleasure. बच्चों, जो फूड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें रिकवर करने के लिए, बीमारी से ठीक होने के लिए फूड जो है वो हमारी हेल्प करता है। Types of nutrients. Food contains nutrients that we need to grow and stay alive. Nutrients are substances needed for growth and for other body function. Nutrients are of two types. ये दो तरीके के होते हैं, macronutrients and micronutrients. Macronutrients जो होता है, the word macro means large. The nutrients that are needed in large amount are called macronutrients. These macronutrients provide calories in different amounts. There are three macronutrients: carbohydrates, फैट्स और प्रोटीन्स। ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड इन द लार्जेस्ट अमाउंट. दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सो आवर डेली डाइट मस्ट कंटेन रीजनेबल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are easily used by the body. Carbohydrates are needed for the central nervous system, kidneys, brain, and muscles for working properly. Carbohydrates are mainly found in starchy foods like grain and potatoes, fruits, milk, and yogurt. Sugar and starch are the simplest form of carbohydrates. Carbohydrates जो होते हैं वो starchy foods कहलाते हैं, जैसे कि grain, potatoes, fruits, milk और yogurt. Fiber or roughages are the types of carbohydrates that our body cannot digest. These carbohydrates help to move waste out of the body. It prevents constipation and decreases the risk of overeating. Foods high in fiber include fruits like orange and papaya, as well as green leafy vegetables and whole grain products. Fats. There are three types of fat. तीन तरीके के फैट होते हैं. Saturated fat is found in meat, butter, and cream. Trans fat is found in baked items like biscuits, snack foods, and fried foods. Unsaturated fat is found in olive oil, nuts, etc. Fats provide taste and stability to food. जो fats है वो फूड को स्टेबिलिटी और टेस्ट प्रोवाइड कराती है. They provide energy for normal growth and development. They help to absorb certain vitamins. They cover the delicate body parts and protect them from injuries. They also keep the body warm. Excess fat can make a person overweight and obese. बच्चों, फैट तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती ही है, उसकी आवश्यकता होती ही है हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हम एक्सेस फैट हमारी बॉडी में पहुंचा देते हैं तो उससे हमारा जो वेट है वो ओवरवेट हो जाता है और उससे ओबीज भी हो सकता है, हमें बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हमें कंट्रोल में ही फैट को रखना चाहिए। Proteins. Our diet must contain 35% of food rich in proteins. Food like beans, meat, poultry, fish, cheese, nuts and pulses are rich sources of proteins. ये सभी proteins
इन सभी खानों में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। वी नीड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स। दे बिल्ड एंड रिपेयर worn out cells of our body. They improve our immune system. They provide energy when carbohydrates are not available. जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो जाती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। Micronutrients. Vitamins and minerals are often called micronutrients because our body needs only small amounts of these nutrients. बच्चों, जो विटामिन्स और मिनरल्स होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। डू यू नो एप्पल्स आर मोर एफिशिएंट देन कैफाइन फॉर वेकिंग अप यू इन द मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं कि एप्पल जो है वो मोर एफिशिएंट है, वो ज़्यादा पावरफुल है कैफाइन से आपको मॉर्निंग में जगाने के लिए। Vitamins. Vitamins are organic substances made by plants or animals. There are two categories of vitamins. Fat soluble vitamins जिसमें होता है A, D, E and K. Water soluble vitamins जो होता है उसमें पाया जाता है C and B complex. Type. Vitamin A. इसके benefits क्या है? Prevents eye problem, promotes healthy immune system और keeps skin healthy. इसका source है sunlight, egg, milk, फिश और ऑयल्स। विटामिन सी, इसका बेनिफिट है हेल्दी बोन्स, टीथ एंड गम्स, हेल्प टू एब्जॉर्ब आयरन एंड कैल्शियम, एड्स इन वाउंड हीलिंग एंड ब्रेन्स फंक्शन। और इसका सोर्स है नट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। विटामिन डी, बच्चों इसके बेनिफिट्स हैं स्ट्रेंथन बोन्स एज इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व कैल्शियम, और इसका जो सोर्स है वो है स्पिनच, गुआवा, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। विटामिन ई, इसके बेनिफिट्स है प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम सेटिंग डैमेज, और इसका जो सोर्स है बच्चों वो है मिल्क, एग, सीरियल्स, कैरेट्स, पोटैटोज, मैंगोज एंड टोमेटोज। मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मिनरल्स आर inorganic substances that come from soil and water and are absorbed by plants or eaten by animals. Minerals are needed in very small amount. Minerals जो है वो काफ़ी small amount में उसकी आवश्यकता होती है। टाइप है इसका कैल्शियम, बेनिफिट है builds strong teeth and bones. सोर्स है इसका ब्रेड, नट्स, पोटैटोज, बीन्स, बनानाज, मिल्क एंड चॉकलेट। आयरन, बेनिफिट है इसका कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सोर्स है इसका रेड मीट, फिश, लेंटिल्स एंड बीन्स। मैग्नीशियम, बेनिफिट है इसका हेल्प्स मसल्स एंड नर्व फंक्शन, हेल्प्स द बॉडी क्रिएट एनर्जी एंड मेक प्रोटीन्स। सोर्स है इसका मिल्क, चीज, वेजिटेबल्स एंड ऑरेंज। जिंक, इसका बेनिफिट है स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम, और सोर्स है इसका मीट, सी फूड, नट्स एंड मिल्क। वाटर, human body contains 75% of water. Water is a major component of every cell. Blood, muscles, lungs and brain, they all contain water. बच्चों जो water है हमारी बॉडी में वो है 75%. ये एक मेजर कंपोनेंट है जितने भी सेल्स हैं। ब्लड हमारे लंग्स में, ब्रेन में और मसल्स में ज़्यादातर पानी का हिस्सा होता है। Water acts as a mode of transport mode for nutrients and oxygen so that they are able to go to different organ and tissues. बच्चों जो वाटर है वो जितने भी ट्रांसपोर्ट मोड है हमारी बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, इनमें घुल के वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। It maintains body temperature by distributing the heat throughout the body and losing excess of it in the form of sweat. ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है और हमारी बॉडी में जितना भी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, वेस्ट वाटर होता है, उसको ये बाहर निकाल देता है। इट हेल्प्स द फूड मूव थ्रू द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट सराउंड्स द प्रोटेक्ट्स द delicate body parts like the eyes, brain and the spinal cord. It keeps our eyes bright, skin soft and hair shining. वाटर हमारी जो बॉडी पार्ट्स है उसको काफ़ी सहायता प्रदान करता है। ये हमारे आइज़ को ब्राइट रखता है, स्किन को काफ़ी सॉफ्ट रखता है और हमारे हेयर को शाइनिंग मुहैया कराता है, प्रोवाइड कराता है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले डू यू नो, क्या आप जानते हैं आवर बॉडी लूजेज वाटर through urination, respiration and sweating. The amount of water needed by one's body depends on one's age, external temperature and humidity. We need to drink at least 2 liters of water every day. हमें रोज़ाना 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए।
और हमारी बॉडी जब वाटर को बाहर निकालती है, जो कि अनयूज्ड वाटर होते हैं, अनवांटेड वाटर होते हैं, वो यूरिनेशन से, रेस्पिरेशन से और स्वेटिंग से हमारी बॉडी के थ्रू अनवांटेड वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। पानी की आवश्यकता एक इंसान को उसके एज के अनुसार पड़ती है। बैलेंस्ड डाइट, a diet that contains all the important nutrients, refuges and water in the right proportion is called balanced diet. A balanced diet is essential for remaining healthy and growing well. बैलेंस डाइट हर एक इंसान के बॉडी की ज़रूरत है, ये एक आम ज़रूरत है हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए हमें रोज़ाना बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ डिसीज़, disease is the condition that does not allow the body to work properly. When we suffer from a disease, the taste of food does not seem to be good, so we do not feel energetic and we feel sick and lazy. Our immune system also becomes weak. बच्चों, डिसीज़ जो है वो एक उस तरीके का कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, हमारी बॉडी में थकान रहने लगती है, हमारी बॉडी बहुत लेज़ी हो जाती है, हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी काफ़ी वीक पड़ जाता है। कम्युनिकेबल डिसीजेज, द डिसीज विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेज। दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, food, water, etc. Microorganisms that cause these diseases are called germs. Germs are of the following kinds. बच्चों, वो डिसीजेज जो हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती है, जो कि कम्युनिकेबल डिसीजेज कहलाती है, जो कि एयर, फूड और वाटर से फैलती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कई सारे डिसीजेज हैं, चलिए जान लेते हैं उन डिसीजेज के बारे में। सबसे पहला है बैक्टीरिया। दे कॉज डिसीजेज लाइक टाइफाइड, प्लेग, tuberculosis, etc. Viruses, they cause diseases like measles, chickenpox, AIDS, etc. Protozoa, they cause diseases like malaria, dysentery, etc. The disease causing microorganisms are transferred from one person to another through various ways. These diseases are also known as infectious diseases. वो डिसीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत सारे वेज में, बहुत सारे वेरियस वेज में पहुंच जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दे आर कॉज्ड ड्यू टू deficiency of a nutrient, vitamins, minerals, etc. or due to the malfunctioning of a body part like liver, kidney, etc. बच्चों, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते, बल्कि ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी होने के कारण हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे जान लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके, विटामिन ए का है डेफिशिएंसी डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी का है स्कर्वी, विटामिन डी का है रिकेट्स, कैल्शियम का है ऑस्टोपोरोसिस, आयरन का है एनीमिया और आयोडीन का है गॉइटर। Malnutrition, lack of proteins or carbon dioxide over a long period of time causes malnutrition. It is common in children. In case of malnutrition, there are signs of improper or stunted growth. Thin legs and hands, swollen stomach, patchy skin, and dull reddish hair are some common symptoms. This condition can be avoided by eating food that is rich in proteins and carbohydrates like banana, potato, milk, and cereals. बच्चों, जो माल न्यूट्रिशन है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है। इनके जो साइंस होते हैं ये होते हैं पैची स्किन हो जाता है, पेट में स्वेलिंग हो जाती है, रेडिश हेयर हो जाते हैं, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं और ये ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। और ये क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता बच्चों को, उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता, उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता, इसकी वजह से उन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। Vaccines. Vaccine is a substance that is injected to the blood to protect the body from a disease. This process is called vaccination. Vaccination develops immunity against a disease in our body. बच्चों, वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के ब्लड में जाकर ये इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में अगर कोई भी वायरस आ जाता है तो वो इससे लड़ के, जो वैक्सीन है उससे लड़ के और उस बीमारी को ख़त्म कर देता है। Common vaccines that are given to us at childhood are polio vaccine, DPT vaccine prevents diphtheria, pertussis and tetanus, and MMR vaccine prevents measles, mumps and rubella.
डू यू नो, बच्चों क्या आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट विच हैज सीड्स ऑन इट्स आउटसाइड। स्ट्रॉबेरी एक इकलौता ऐसा फ्रूट है जिसकी जो बीज होती है वो फ्रूट के बाहर होती है। वर्ड एड, ओबीज, वेरी फैट, in a way that is not healthy, humidity, the amount of water in the air, hygiene, the practice of keeping yourself clean in order to prevent illness, constipated, unable to get rid of waste material from the bowels easily, calories यानी energy, immune यानी protection from infection. Sum up, nutrients present in food are proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Carbohydrates are the main energy source for the body and are easy to digest. Fats protect body parts, maintain body temperature and give energy. Proteins helps in growth and repair of the body cells. Vitamins and minerals are required in small amounts and help the functioning of different body system. Water and refuges are essential for the body. Water helps the various body system to work. Refuge helps the body to get rid of waste material. Disease is an illness that affects the health of a person. Diseases can be communicable and non-communicable. Diseases can be prevented or controlled by maintaining personal and general hygiene, giving vaccination and using medicines. बच्चों इसके बाद चलिए आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।